Welcome on this learning platform. We are going to start the chapter magnet, and we all have observed and played with magnets, right? And magnets are easily available, easily able to attract. मतलब attract means खींच सकता है. किसको खींच सकता है? Iron nails, iron pins, and other iron object. Now see here, iron, iron, iron. Now not everything is attracted by the magnet. Nowadays we find them attached to the variety of object that can stick on a iron almirah or a refrigerator door. अब बहुत सारे खिलौने भी आ रहे हैं जिसमें मैग्नेट लगा रहता है, पर्सेस में मैग्नेट लगा रहता है, ड्रॉर्स में मैग्नेट्स लगा रहता है. तो दे नाउ डेज इट हैज़ वैरायटी ऑफ यूजेस. दे आर ऑल्सो अटैच टू द कबर्ड डोर्स. दे स्टे शट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट एंड एन आयरन सपोर्ट. एक साइड डोर में एक साइड मैग्नेट रहेगा और दूसरी साइड आयरन रहेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और ये क्लोज हो जाएगा डोर. मैग्नेटिज्म वॉज डिस्कवर्ड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो. बहुत पहले ही मैग्नेटिज्म का डिस्कवरी हो चुका. डिस्कवर मतलब खोज. देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एल्डरली शेफर्ड. शेफर्ड मीन्स गडेरिया, named Magnus, who lived in a place called Magnesia in northern Greece about 4,000 years ago. 4,000, it's pretty long time. बहुत पहले 4,000, 4,000 years ago, the shepherd named Magnus at the place called Magnesia, it was discovered. What was discovered? Magnet. One day, while taking his sheep around, he found that the nails of his shoes and the metal tip of his stick suddenly got firmly stuck to the large block of rock. Large black rock, right? Black rock. Now see here, because of the iron content, its color was black, on which he was standing. He thought about it and realized that the black rock must have some special attractive property. उस रॉक में कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था, तो वो किस वजह से था वो फाइंड आउट करने की कोशिश किया. द ब्लैक रॉक वॉज लेटर नेम्ड मैग्नेटाइट, perhaps after Magnesia or Magnus. Now see here, this is the name of the shepherd, this is the place where magnet was discovered. So उस black rock को क्या बोला गया? Magnetite. Ancient Greek and Chinese are said to have discovered an additional property. एक और इसमें क्या, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था, एक एडिशनल प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्कवर किया. डिस्कवर मीन्स अगेन ढूंढना, खोज निकालना. इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. What they did, they discovered it. The directional property of the magnet. It means it is showing a definite direction. A thin long piece of magnetite, when suspended freely, was found to always point to one particular direction only. This led to its alternative name, lodestone. Lodestone means leading stone. Leading means direction, जो लीड करता दिखाता है. तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पहले ही पता चल गया जिसके कारण उन्होंने डिस्कवरी हुई. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के ही कारण मैग्नेट की डिस्कवरी हुई. बाद में ग्रीक और चाइनीज ने देखा कि इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि वो ऑलवेज एक ही कितना भी उसको घुमा दिया जाए वो एक ही डायरेक्शन को शो करता है. Now here is one thing to know, that is magnetite. One thing to know here is that magnetite is found in rock strata having iron deposit. What is rock strata? Rock strata is the arrangement of sedimentary rocks. लेयर के ऊपर लेयर जो बनते चले, सबसे नीचे एक लेयर गया, फिर उसके ऊपर. तो ये जो रॉक्स का जो लेयर होता है, दैट इज रॉक स्ट्राटा. अब कैसा, कहाँ पर मैग्नेटाइट मिलेगा? जहाँ पर आयरन डिपॉजिट्स ज़्यादा होंगे. वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन मैटर इटसेल्फ और ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन. आयरन को करेगा या फिर जिसमें आयरन कंटेंट होगा या आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स में. मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. भाई नेचर में, क्योंकि वो मैग्नेटाइट जो रॉक मिला दैट वाज इन नेचर. अब नेचर में मिला तो उसको अपने यूजफुल बनाने के लिए फाइनली मैन मेड मैग्नेट वाज made. The lodestone is a naturally occurring magnet and can be called a natural magnet. ये वाला चीज़ है, magnetite is a natural magnet. Natural magnet do not have any definite shape and they exert rather small attractive forces on objects made of iron. इसमें जो है, जो नेचुरल ऑकरिंग होगा उसमें जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा वो कम होता है. Now see here, we can use materials like iron, nickel, steel, cobalt and alloys. Alloys means the combination of two or more metals. Sometimes we use carbon non-metal, that is non-metal for. So the artificial or man-made magnets can be made in various shapes and sizes and can have quite a large strength. स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि नेचुरल मैग्नेट में तो स्ट्रेंथ कम होता है. तो क्यों इसका आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत पड़ी कि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत थी. अब उसका यूज़ क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे. सम ऑफ द कॉमन शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर बार मैग्नेट, जो सिंपल बार, एक स्ट्रेट बार की तरह, जैसे चॉकलेट बार होता है ना, उस तरह से है. तो बार मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट, दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट. ये जो मैग्नेट होता है ना, ये बस ये देख लो, अगर इसको बेंड कर दिया जाए, बार मैग्नेट ये ऐसा है, इसको अगर ऐसे करके बेंड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यू शेप में बेंड हो गया.
मतलब बार मैग्नेट को अगर यू शेप में बेंड कर दिया जाए तो ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है। अब इसका क्या है ना, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। अब देखो इसका जो पॉइंट क्या कर रहा है, देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्यों मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है पॉइंटिंग द पोल्स इन द सेम डायरेक्शन। देखो दोनों का दोनों पोल एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों का पोल यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, लेकिन हॉर्स शू मैग्नेट में दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल इज एट द सेम डायरेक्शन। और ये एक परमानेंट मैग्नेट भी है। और इसके ये जो है ना बिटवीन द पोल्स दिस फॉर्म्स, ये पोल इस पोल के कारण यहाँ पर है ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा रहता है इसमें। ये मैग्नेटिक नीडल है भाई, नीडल का तो सीधा काम है कि वो डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ है। देन इट इज़ बॉल मैग्नेट ट्वाइस वगैरह में यूज़ होता है। एंड दिस इज सर्कुलर मैग्नेट का यूज़ होता है लाउड स्पीकर, स्टीरियो, मोटर्स वगैरह में इसका यूज़ होता है। नाउ permanent and this temporary magnets. Permanent, as the name suggests, permanent means जो काफ़ी टाइम तक रहे, permanently रहे, और temporary means जो कुछ टाइम के लिए रहे। तो artificial magnets can be either permanent or temporary. तो permanent magnet का क्या characteristic होगा? Remain as magnet as a long period of time, like steel, cobalt, अल्निको हुआ ना, इसका जो अल्निको है ना, ये तीन एलिमेंट्स है, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, एंड टिकानोल आर सम ऑफ द मटेरियल्स। सो दीज आर यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। अल्निको हुआ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, और टिकानोल हुआ आयरन, निकल, एल्युमिनियम एंड कोबाल्ट। ये सारे एलिमेंट्स को मिला करके अलॉय बना। अलॉय का मतलब ही हुआ कि टू और मोर मेटल्स का जो मिक्सचर बनता है अपने तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है, तो उसको अलॉय कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वी ऑल्सो डू यू नो we now use the magnetic property for many materials for storing information in devices like the cassette tapes, computer disk, etc. So magnetic property की वजह से आजकल जो हम लोग कंप्यूटर वगैरह यूज़ करें उस सारे में ये सारा यूज़ होता है, जो कि तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे कि हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड। नाउ टेम्परेरी मैग्नेट, एज द नेम सजेस्ट, मतलब जो कम देर के लिए मैग्नेट है, दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट। दीज आर मैग्नेट दैट वंस मेड रिमेन एज अ मैग्नेट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बना दे, इलेक्ट्रो यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रिसिटी से जब मैग्नेटिज्म किसी सब्सटेंस में लाया जाता है, देन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज फॉर द फॉर्म ऑफ टेम्पररी मैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन एंड निकल। अब ये सॉफ्ट आयरन क्या हुआ भाई? सॉफ्ट आयरन हुआ ना जिसमें कि कार्बन का कंटेंट, मतलब आयरन रहेगा तो उसमें और भी सारे कुछ मटेरियल्स रहते हैं जिसमें कि अब नॉर्मल जो आयरन रहता है उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो उसको जो है आसानी से मैग्नेटाइज नहीं किया सकता, उसको आसानी से मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है। जबकि सॉफ्ट आयरन में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है कि उसमें सॉफ्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कम होता है, जिसके कारण उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेटाइज, क्योंकि टेम्पररी मैग्नेट की बात करें तो उसको मैग्नेटाइज भी जल्दी किया जा सकता है और बिना मैग्नेटाइज मतलब डीमैग्नेटाइज भी उसको जल्दी किया जा सकता है। एंड निकल आर टू ऑफ द मटेरियल्स, मतलब दो मटेरियल्स हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए यूज किया जाता है। दैट आर ऑफन यूज फॉर मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड, इंसुलेशन तुम लोग जानते हो कि जो कवरिंग होता है, बैड कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेशन का काम करता है। जैसे कि वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कवर रहता है दैट इज इंसुलेशन। तो ये जो कॉइल हुआ, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, मतलब ये एक रॉड और उसके ऊपर जब इंसुलेटेड वायर को कॉइल किया जाए, वोन्ड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाए, सॉफ्ट आयरन कोर जिसमें कि कार्बन कंटेंट कम हो, आयरन वैसा आयरन जिसमें कार्बन कंटेंट कम है, और इसके ऊपर इंसुलेटेड वायर को रैप कर दिया जाए और उसके बीच में से इस जो रॉड है इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रॉड आयरन का है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाए तो ये जो वायर है ना इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म, वो जो है मैग्नेट, ये जो रॉड है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ना सी है अ कॉइल इंसुलेटेड वायर वुंड ऑन द, वुंड मतलब लपेटा हुआ, वुंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब ये जो अंदर वाला हुआ वो कोर, एक मिनट, ये सॉफ्ट आयरन और इसके ऊपर जो इंसुलेटेड वायर का जो रैपिंग हुआ, अब क्या हुआ कि इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल में से, अब ये जो कॉइल है ना, ये इंसुलेटेड वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाए तो इसमें जो है रॉड में, ये पूरे सिस्टम में मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ जाता है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जैसे ही करंट को बंद कर दिया जाता है तो ओके, तो इलेक्ट्रिक इसमें से फ्लो कराया जाता है इस कॉइल में से, तो वो उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन रहा है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जा रहा है। और इसमें क्या होता है, ये टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे ही स्विच ऑफ किया इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हुआ, वो वापस क्या बन जाएगा, नॉर्मल, वो फिर मैग्नेटिज्म उसमें नहीं रहेगा। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसमें न
अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा ना डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. टेम्पररी मैग्नेट का जो पावर होगा वो परमानेंट मैग्नेट से काफ़ी ज़्यादा होगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोबाइल क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक स्क्रैप्स ऑफ आयरन. स्क्रैप्स मतलब जो कचरा होता है, या ऐसे ही है, स्क्रैप्स ऑफ आयरन, कचरा हुआ अनयूज्ड, जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा है और या फिर उसको दोबारा यूज़ करना है, तो वो मतलब आयरन का जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसको कहेंगे स्क्रैप्स ऑफ आयरन. एंड इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एंड टेलीफोन, सब जगह क्या चीज़ यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर पावरफुल मैग्नेट. Now see here, magnetic and non-magnetic material. Now see here, all the materials cannot be attracted by the magnets that you know. Now तो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले, जो मैग्नेटिक मटेरियल वो जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर ले, और जिसको नहीं कर पाए वो नॉन मैग्नेटिक. सिंपल, वी नो दैट आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा, जो लाइक पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे, जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे. और कोई भी मैग्नेट का 2 पोल्स जरूर होगा, यही इसका प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब पहला हुआ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट हुआ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सेकंड हुआ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शन होगा, थर्ड होगा कि इसका 2 पोल्स जरूर होना चाहिए, एंड फोर्थ होगा कि वो अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स रिपेल करेंगे. नाउ वी कॉल मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट एज मैग्नेटिक मटेरियल्स. जो अट्रैक्ट कर ले, these can be attracted to magnet, तो इसको कहेंगे magnetic materials. Materials that do not attracted towards the magnet are called non-magnetic materials. Try to think some of the more magnetic materials. Now see here, now this is the activity. Let us try to classify a given set of material object into magnetic and non-magnetic materials. Let the given collection be iron nails, straw, cupboard, coins, rubber band, plastic spoon, silver spoon, paper clips, compact disc, etc. Now you do it yourself. This is easy one. That's very easy. Like spoon में स्टील है तो वो अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉ में नहीं करेगा, नेल्स में करेगा, पिंस में करेगा, कॉइन्स में नहीं करेगा. ये पिंस में करेगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना आयरन है. मेटल्स कैन बी यूज्ड टू एज कंट्रोल डिवाइस. ये कंट्रोल डिवाइस क्या है भाई? कंट्रोल डिवाइस टू होल्ड व्हाट टू कंट्रोल, टू होल्ड, सेपरेट एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट और डिवाइसेज. Now strength of a bar or shoe magnet. Now strength of a magnet can be determined in the terms of its attractive force, that is the force by which materials can attract it towards it or stick to it. The more the attractive force, जितना ज़्यादा attractive force होगा और pull होगा, the magnet more is the strength of the magnet. Now consider a collection of bar shoe magnet of different size and shapes. Suppose we want to find out the strongest as well as the weakest magnet from the given collection. बहुत सारा मैग्नेट रखा हुआ, किस मैग्नेट का कितना पावर है उसको फाइंड आउट करना है. A simple way of finding this is to use magnet one by one to pick up steel, paper, clips. Hold one end of each magnet one by one to collect these clips. The magnet which attracts a large number of clips can be thought as the strongest one. This is a simple activity कि भाई जो मैग्नेट डिफरेंट मैग्नेट्स को यूज़ करना है और जितना क्लिप वो अट्रैक्ट कर रहा है उसी के हिसाब से एक बार ग्राफ बना देना है और उससे पता चल जाएगा जितना ज़्यादा पिन अट्रैक्ट होगा इसका मतलब वो उतना ही पावरफुल मैग्नेट होगा. सो दिस इज एन एक्टिविटी. वी कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ बिटवीन द नंबर of the paper clips that stick to the magnet and the type of the magnet. The graph provides a comparison of the strength of the given collection of different magnets. अलग अलग मैग्नेट अलग अलग अमाउंट ऑफ क्लिप अट्रैक्ट करेगा, उसके हिसाब से ये बार ग्राफ बन गया. नाउ एक्टिविटी 2. अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है. एक्टिविटी 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द पोल. नाउ सी है, ये जब भी बार मैग्नेट का होगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है ना उसके एंड पर सबसे ज़्यादा होगा और धीरे धीरे कम होते होते मिडिल में आते आते एकदम खत्म हो जाएगा. सो प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टेबल, कवर इट विद अ ट्रांसपेरेंट शीट और प्लास्टिक ग्लास, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट. व्हाट अब आयरन फिलिंग्स क्या होता है? तो भाई आयरन फिलिंग कुछ नहीं है, आयरन ही है, बस वो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है, मतलब पाउडरी सब्सटेंस, एक तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है, दैट इज आयरन फिलिंग. आयरन ही है, बस उसका बहुत छोटा छोटा टुकड़ा पाउडर बनाया हुआ है समझो. ऑन द शीट व्हाट डू वी ऑब्जर्व? व्हाट इज हैपनिंग टू द आयरन फिलिंग. देखो अब किस तरह से ये छोटा छोटा टुकड़ा है ना, क्यों हमने छोटा छोटा यूज़ किया? ताकि पता चले जितना ज़्यादा टुकड़ा जहाँ पर अटैच होगा वो उतना ही ज़्यादा वहाँ का मैग्नेटिक पावर होगा. तो यहाँ पर देखा गया कि ये जो देखो यहाँ और यहाँ पर एट द एंड एट द पोल्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक द फिलिंग्स आर attracted. This arrangement of iron fillings with more and more of this filling collecting near the ends of the bar magnet. The rearrangement of the iron fillings suggests that the bar magnet has 2 poles and its strength maximum near the poles. यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है. Now activity 3 है. What is the now? Suppose we get the above bar magnet gently cut into 2 halves. अब उसी bar magnet को ले लो, उसको आधा टुकड़ा कर देते हैं.
तो मैग्नेट की ये बात है, जितना भी टुकड़ा कर देंगे उसका 2 पोल हमेशा रहेगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा रहेगा, और जो पोल्स पर होगा उसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा रहेगा. नाउ ओनली वन ऑफ द पीस अंडर द कवर ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट, व्हाट वी आर लाइकली टू ऑब्जर्व, वही वाला हम लोग को रिजल्ट वही मिलने वाला. सो वी फाइंड द पैटर्न द filling is similar to the pattern observed in the first case. This shows that each piece of the cut bar magnet still has 2 poles. बार मैग्नेट को जितना भी छोटा कर लिया जाए काट करके, एकदम स्मॉलेस्ट पीस भी अगर आप लोग करोगे तो लास्ट पीस भी होगा ना, इट विल हैव 2 पोल्स. नाउ दिस इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट. व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, सस्पेंडेड मतलब ऐसे लटका दिया जाए, उसको घूमने दिया, उसको कोई रोकना नहीं है, बस उसको लटका देना. इट 2 poles point approximately, मतलब पूरी तरह से नहीं, approximately लगभग, towards the geographical north pole and south pole. उसका जो डायरेक्शन होगा ना geographical north pole और south pole पर, वो आके रुक जाएगा. The pole of the bar magnet which points towards the geographical north pole is called its north seeking pole, and the other which points towards the geographical south is called south seeking pole. ना से यह अर्थ का में जो एक्सिस पर, ये इसको भी है ना, अर्थ को एक बड़ा मैग्नेट बोला गया. तो जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो उसका जो एक डायरेक्शन में जाकर के वो रुक जाएगा, तो उसका जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो साउथ में होगा उसको साउथ सीकिंग पोल बोला जाएगा. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4 है, टाई द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल टू अ स्ट्रिंग. धागे से बांध के छोड़ देना उसको. टाई वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द स्टैंड एंड लेट द बार मैग्नेट हैंग फ्रीली फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग. व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट इज resting. For identification, put a mark on one end. Now see, this is the experiment. अब इसको करना है, अब इसको कितना भी किया जाएगा ना, अल्टीमेटली ये इसी डायरेक्शन में हिला डुला करके कर ले, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा. Now what happens when we turn the bar magnet around the face opposite direction? The bar magnet rotates or its ends turn and again point to the same direction. We can say that the freely suspended bar magnet always points in one particular direction, and the north साउथ डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन होगा? एक ही डायरेक्शन होगा जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा. द एंड ऑफ द बार मैग्नेट विच ऑलवेज सीक्स द जोग्राफिकल नॉर्थ. जोग्राफिकल नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो जोग्राफिकल नॉर्थ. द अदर एंड ऑफ this always seek the geographical south is the south pole of the bar magnet. Now interaction, that is attraction or repulsion. Interaction हुआ कि कुछ भी हो सकता है. अट्रैक्शन और रिपल्सन को कंबाइन करके इंटरेक्शन बोल दिया गया. इंटरेक्शन को बातचीत भी बोला जाता है, एक दूसरे से जो हम लोग बातचीत करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंटरेक्ट बिटवीन टू बार मैग्नेट. अब दो बार मैग्नेट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या बात हो रहा है, क्या situation बन रहा है. Let us place a bar magnet near one end of the large table. If we place another bar magnet at the opposite end of the table, what do we observe? Both the magnets remain stationary. सारे दोनों मैग्नेट स्टेशनरी हो जा रहे हैं. स्टेशनरी मतलब रुक जा रहे हैं. At large distance, the force that they exert on each other is almost zero. दूरी जितना दूरी बढ़ेगा उसका इफेक्ट उतना कम होगा. Now let us move one of the bar magnet towards the other bar magnet in such a way as to make their unlike poles face each other. Unlike poles क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि अट्रैक्ट होगा. दिस इज सिंपल वन. दिस इज द एक्सपेरिमेंट कि भाई अगर ये अनलाइक पोल्स है, देखो यहाँ पर दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, और इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है. ये दिस एरो इज शोइंग दैट इट इज अट्रैक्टेड, वाइल दोनों का पोल सिमिलर पोल लाइक पोल्स को साथ कर दिया गया, तो इट इज शोइंग रिपल्सन. दिस इज सिंपल एक्टिविटी. नाउ दिस इज द एक्टिविटी फॉर हाउ द आयरन फिलिंग विल show its way, show its how it is arranged there when both the same like poles are brought together. Now see the iron filling. इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो पोल्स पर है वो ज़्यादा फिलिंग आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ना, इधर देखो, इधर कम आ रहा है, बहुत कम. और इसका क्या डायरेक्शन है, जो इसका इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट. पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग व्हेन लाइक पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स फेस ईच अदर. ना सी है, देखो दोनों में डिफरेंस है. इसमें किस तरह से बन रहा है, इसमें देखो इस तरह बन रहा है. ना सी है, इसमें किस तरह बन रहा है, ये देखो राउंड आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे. तो देयर इज डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग व्हेन बोथ द poles are arranged in a different way. Now property of a bar magnet. So we now list down the special properties of a bar magnet. And what are the properties? Attractive property, the magnet is capable of attracting small pieces of iron, steel, etc. And directive property, a freely suspended magnet always points approximately along the geographical north and south pole. हमेशा एक ही direction रहेगा. So magnet has two magnetic poles, right? North pole and south pole, and then the like poles and unlike poles. So like poles repel and unlike pole attracts. Now Earth as a magnet, this is interesting, right? So how it works.
कि मैग्नेटिक निडल जब काम कर रहा है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है कि उसको कुछ तो गाइडेंस मिल रहा है कि हमें नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाके रुकना है। तो वो क्यों? क्योंकि अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज अ मैग्नेट, अ ह्यूज मैग्नेट, जिसके कारण जो कॉम्पास यूज होता है उसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दिखता है, बिकॉज ऑफ अर्थ बीइंग एज अ ह्यूज मैग्नेट। Now see here, we can understand the directional property of a bar magnet by realizing that the earth also behaves like a huge magnet. Like any other magnet, we can think of the earth also as a magnet having two magnetic poles. That is, magnetic poles of the earth do not coincide with its geographical pole. अब ये एक important line है कि magnetic poles जो है उसका जो geographical pole है उससे coincide नहीं करता, क्योंकि ये tilted है। अगर हम लोग अर्थ को लें तो यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है दिस इज मैग्नेटिक पोल, लेकिन जोग्राफिकल पोल जो है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड, क्योंकि अर्थ पर थोड़ा टिल्टेड है ना, ऐसे करके रहता है अपने एक्सिस पर। तो ये जो पोल है ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम कॉन्साइड नहीं करता एक दूसरे के ऊपर। द पोल नियर द जोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज रिगार्डेड एज साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। लाइकवाइज द पोल नियर द जोग्राफिकल साउथ पोल इज रिगार्डेड एज द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि जब भी अट्रैक्शन होगा या डायरेक्शन होगा तो उसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो जाकर के रुकेगा। अगर फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल है, मैग्नेट है, तो वो क्या होगा कि जब वो रुकेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जहां पर, क्योंकि वो मैग्नेट है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो लाइट पोल्स होगा वो अट्रैक्ट करेगा, तो लाइट पोल्स के पास जाकर के मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जहां पर अनलाइक पोल्स के पास जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो अनलाइक पोल के पास जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल जाएगा। नाउ मेकिंग अ मैग्नेट कैन बी made in a varieties of ways. Some of these methods are given below. We can make a magnet by freely suspending iron rod in a north-south direction and gently hammering it repeatedly at one end. एक ही डायरेक्शन में हैमरिंग कर करके आयरन को बनाया जा सकता है, लेकिन ये मैग्नेट क्या होगा, वीक मैग्नेट होगा, बहुत पावरफुल नहीं होगा। वी कैन ऑल्सो मेक अ मैग्नेट बाय मूविंग अ बार मैग्नेट अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। अब एक ही डायरेक्शन में इसको एकदम रगड़ते जा रहे हैं तो भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा, मतलब हम लोग मैग्नेट बना पाएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि भाई आयरन के पास रख देते हैं, मैग्नेट के पास आयरन रॉड को रख देते हैं या फिर स्टील रॉड को रख देते हैं, बार मैग्नेट फॉर सम टाइम, सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट अक्वायर द मैग्नेटिज्म। अक्वायर मीन्स ले लेता है, कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक उसमें डेवलप हो जाता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, द मैग्नेट मेड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड वुड बी अ परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी? क्या होगा, परमानेंट होगा कि टेम्परेरी होगा? थिंक ऑफ इट, टेम्परेरी होगा कि परमानेंट होगा? ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मैग्नेट। भाई मैग्नेट बनाएं और फिर उसको ना बनाएं, उसका मैग्नेटिक हटा दे। नाउ टेक अ लार्ज आयरन नेल, यूज इट फॉर पिकिंग अप सम पेपर क्लिप्स made of iron, observe what happens and record your findings. Now use one end of a bar magnet to strike a nail only 25 times in the same direction. Now हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं ना, so try again to pick up the same set of paper clips with this stroked by magnet. अब उसी को हम लोग अब पहले तो स्ट्रोक मतलब अब रगड़ के बनाए, एक हुआ कि हैमरिंग करके। Now nail, observe what happens and again record your findings. अब क्या आ गया, now throw this very nail on hard surface a large number, बहुत सारे को, मतलब कम से कम 50 होना चाहिए। Now try one or more time to pick up the paper clips again with this very nail. Observe what happens and record your reading. This is an activity. You'll try to do it. Now finding direction. So the directive property of the bar magnet has proved useful for mankind over ages. The practical device based on property is the magnetic compass. ये magnetic compass है जो डायरेक्शन, जो पहले शिप वगैरह में, वॉयज वगैरह में जाते थे या जो ट्रैवलर होते थे वो इसको जरूर रहते थे ताकि रास्ता ना भटके। The compass consists of magnetic needle pivoted. Pivoted means मतलब इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, at its center मतलब लटका हुआ होना, freely to rotate horizontally, to rotate a horizontal plane. The needle is fitted in a horizontal box having a glass cover. The compass also has a dial with direction marked on it. It is simply about the compass. In order to locate the direction at a place, the compass is placed away from any other magnet, an iron piece, or any current carrying wires. The compass needle will then point along north south direction at that place. यानी करंट की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या डेवलप कराया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें सही डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो ये जो कंपास है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी से दूर रखना होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर से, जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसके पास मैग्नेट को लाने से जो सही रीडिंग होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट जो करंट कैरी करता है, वायर करंट, अगर वायर से करंट पास कर रहा है तो
उस एरिया में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाएगा। उस एरिया में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा, डेवलप होगा, तो जो निडल है ऑफ कोर्स वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। वो अर्थ का नहीं दिखाएगा, वो जो उसका प्रॉपर डायरेक्शन वो नहीं दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? जो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है वो दिखाएगा। तो दैट मे बी रॉन्ग। सो फर्स्ट कॉम्पास वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज। एक क्वेश्चन वगैरह आ सकता है, भाई किसने किया कॉम्पास का इन्वेंशन, किसने किया? देखो, डिस्कवरी और इन्वेंटेड में फ़र्क है। डिस्कवरी मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको ढूंढा जाना, और इन्वेंटेड मीन्स नया कोई सामान, कोई नया चीज़ बनाना जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कहाँ पर बनाया गया? चाइनीज इन 12th सेंचुरी, बहुत काफ़ी साल पहले। बिफोर दैट चाइनीज सेलर्स यूज magnetic needle for navigation on ships. The travelers used to find direction by freely suspending a natural magnet which always carried, जो वो लोग हमेशा कैरी करके रखते थे। Now take a simple compass, ये एक एक्टिविटी है। Now additional interesting facts about magnets। अब है कि भाई मैग्नेट टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन हीटेड और मिसहैंडल्ड। मतलब उसको मिसहैंडल किया जाएगा तो उसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो लॉस्ट हो जाएगा। इफ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली देयर स्ट्रेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। हैंस देयर आर स्पेशल वेज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट्स आर कैप्ट इन पेयर्स। देखो कैसे करके पेयर्स में रखा गया, अकेले नहीं रखा गया, पेयर्स में रखा गया। उसके साथ एक वुडन डाला गया है और साथ में एक कीपर रखा गया। वो कीपर क्या है भाई? आयरन का है, सॉफ्ट आयरन का। नाउ फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट्स आर कैप्ट विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अनलाइक पोल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देख लो, ये साउथ है, ब्लू साउथ, नॉर्थ रेड। सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड एट द एंड्स, 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड। ये जो सॉफ्ट आयरन को प्लेस किया गया, ये जो सॉफ्ट आयरन है, और ये जो वुडन पीस है उसको बीच में डाल दिया गया। वी कॉल दीज आयरन्स एज मैग्नेटिक कीपर्स। इसको कहते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। नाउ मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स। हैंस दे शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर अ कंप्यूटर और सेल फोन और डीवीडी और अ फ्लॉपी डिस्क और एन ऑडियो कैसेट। भाई व्हेन यू आर प्लेइंग विद द मैग्नेट्स बी केयरफुल, उसको स्टोर अच्छा से करो कि उसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है मैग्नेटिज्म उसका लूज ना हो। उसके अलावा यू हैव टू बी केयरफुल दैट इट इज़ नॉट कैप्ट नियर दीज थिंग्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसका डेटा इरेज होने का खतरा बना रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कीवर्ड्स। दीज कीवर्ड्स हैज टू बी लर्नड बाय हार्ट। एंड नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। हियर इज द मटेरियल्स which do not get attracted towards the magnet are called non-magnetic material. The bar magnet is an example of permanent magnet. Even the smallest piece of bar magnet has 2 magnetic poles. Earth has its magnetic poles towards its geographical south pole. So this is fill in the blanks. And now true and false. That's easy one. You have understood the chapter. You can easily do it. So naturally occurring magnets are called lodestone. True. An aluminum foil would get attracted by a magnet. False. क्योंकि अल्युमिनियम में मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। बार मैग्नेट्स है नॉर्थ सीकिंग पोल एज वेल एज साउथ सीकिंग पोल डेफिनेटली होता है भाई। 2 मैग्नेट्स पोल ऑफ द सेम काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। भाई नहीं, सेम 2 मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द सेम काइंड अट्रैक्ट ईच अदर नहीं, रिपेल करेगा। व्हेन 2 मैग्नेट्स आर मूव फार्दर अवे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर द फोर्स दैट अट्रैक्ट और रिपेल देम टेंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर। नहीं, उसका वीक होता है, जितना दूर जाएगा उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। इसमें जस्ट आई हैव पुट द आंसर्स ओनली। So you see the magnetic materials that was discovered first is lodestone. Magnet can attract iron nail, and a material that is often used to make a temporary magnet is soft iron. Soft iron के बारे में बताया गया था कि उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। When we suspend a bar magnet from a thread, it comes to rest along a north-south direction. A device which generally does not use a magnet is a geyser. इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सही ऑप्शन दिया हुआ। Now answer in brief. Now state any 2 properties of the bar magnet: attractive property and directive property. So 2 properties of bar magnet are: attractive property, the bar magnet can attract a small piece of magnetic material, and directive property, a freely suspended magnet always has a definite direction along the north-south direction. Now maximum iron filling stick to the ends of the bar magnet. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। See this arrangement, this picture has been directly taken from the book. The maximum iron filling stick to ends of the bar magnets because the strength of the bar magnet near the poles are maximum. Now suppose we bring the north pole of one bar magnet towards the north pole of another freely suspended bar magnet. क्या होगा भाई? दोनों का लाइक है तो लाइक पोल होगा, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल, इट विल रिपेल ईच अदर। ना सही है, दिस इज द अरेंजमेंट। ना ये 2 मैग्नेट है और ये एक दूसरे के ऊपर सस्पेंड फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। अब तैरेगा कब? कि भाई ये जब दोनों के ऊपर रिपल्सन होगा तभी तो ये एक दूसरे से दूर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो दोनों का जो सेम पोल है उसको पास में रखा गया। तो क्यों मस्ट रिपेल बिटवीन 2? They are positioned with same pole facing each other. With same pole facing each other. एक दूसरे को एक जैसा पोल फेस कर रहा है जिसके कारण दोनों में रिपल्सन हो रहा है और ये फ्लोट कर रहा है।
You are given knitting needle of steel. How can you make it into iron magnet? बनाना जान गए हैं भाई. We can turn needle into magnet. उसको बस बार मैग्नेट के पास काफ़ी देर तक रख देंगे तो ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अक्वायर हो जाएगा. Now next question, answer the following in brief. And dear children, as I always suggest you, whenever there is such kind of question to distinguish, तो उसको टेबल बना के देने से ना ज़्यादा अच्छी तरह से याद भी होगा और लिखने में भी आसानी होगी, याद करने में भी, लिखने में भी और देखने में भी. So you can write in such manner, permanent magnet and temporary magnet. This is the first question. This is easy one. Now next is मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जो भाई अट्रैक्ट करे मैग्नेटिक, जो कुछ नहीं करे, जो नॉन अट्रैक्ट ना करे, दैट इज नॉन मैग्नेटिक. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 2 बार मैग्नेट्स पी एंड क्यू आर केप्ट एज शोन इन द डायग्राम. ऐसे रखा गया है 2 मैग्नेट्स को, एक पी है एंड क्यू है. अब क्या हो रहा है, इफ पॉइंट सी ये वाला रिप्रेजेंट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट क्यू, विच पॉइंट रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. अब ये रिपेल हो रहा है, अब ये साउथ पोल है और ये अगर नॉर्थ पोल होता तो ये अट्रैक्ट होता है. इसका मतलब क्या हुआ, ये इस साइड होगा. Right. Point A represents the north pole of magnet P. It will attract each other as these ends are unlike pole. अगर उसको चेंज कर दिया जाएगा. Now describe in brief the construction of compass needle. State its main use. It has been directly taken from the book. The compass consists of magnetic needle pivoted at its center and free to rotate horizontal plane. The needle is fitted in a horizontal box having a glass cover. The compass also has a dial with directions marked on it होगा, marked on it. यहाँ पर एक on भी, rotate on, यहाँ पर on एक होना चाहिए, मतलब center and free to rotate on a horizontal plane. just यहाँ पर on लिख लेना भाई, यहाँ पर rotate के बाद rotate on. Now it is used to locate the north and south direction. Draw a level diagram. This has also been taken from directly from the book. State the advantage of proper storing. कैसे स्टोर किया जाएगा अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया. This is all. So now write the different ways which magnet can be made to lose their magnetism. क्या चीज़ है, अगर हीटिंग किया जाए, मिस हैंडलिंग अच्छी तरह से नहीं रखा जाए तो उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा या फिर उसको अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया जाएगा. तो नाउ अनसुथा सॉ स्टील क्लिप एट द बॉटम ऑफ अ वेरी शैलो मतलब बहुत गहरा ना हो. पडल मतलब जो छोटा सा पडल पानी भर जाता है ना, उसको कहते हैं, गड्ढे वड्ढे में जो पानी भर गया. ऑफ वाटर शी यूज द मैग्नेट टू टेक आउट दिस क्लिप विदाउट वेटिंग हर हैंड्स और द मैग्नेट. डिस्क्राइब हाउ शी मस्ट हैव डन दिस. तो भाई जितना पावरफुल मैग्नेट रहेगा दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा, बस सिंपल, इट्स वेरी इजी. आई गेस दिस इज ऑल एंड दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन completed of your own. Thank you. Thank you. Bye bye.